Hello, my ninth graders. Welcome back to Tuition Masters, and today we are here with doing our lecture number 2 for the chapter The Fundamental Unit of Life. So, before starting, make sure to like this video, share with your friends, and subscribe to our channel go right away. So, as you know, in our last class, we had studied about cell, that is a fundamental unit of life. हमने पढ़ा था कि cell हमारा structural and functional unit होता है. There are cell theory that all organisms are made up of cells. Cell is basic structural and functional unit of life, and the all cells arise from pre-existing cells. है ना? We also studied about few cell organelles like the cell wall. We studied about the plasma membrane, and we even studied about the cytoplasm, and also about what? About the nucleus. There are some more left, so we are going to cover them in a today's session. So first topic for the today is osmosis and tonicity. ये एक important question है, important topic है about the movement of substances across the cell membrane. हमने ये तो पढ़ लिया कि there is a cell membrane. अब इस cell membrane से क्या चीज़ अंदर थे, कितनी बाहर रहते, that we have to understand. There are two types of movement. ठीक है, मेम्ब्रेन के थ्रू देयर कैन बी टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड अदर वन कैन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव मीन्स कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इट कैन डायरेक्टली कम एंड गो, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स दैट इट रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के मूवमेंट के लिए थ्रू इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड, इट दे नीड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्टिव. And passive is no energy requirement. ठीक है. So then comes one topic about diffusion. Okay, a one mark question. Define diffusion. Diffusion is the movement of a substance from an area of high concentration to an area of low concentration. ठीक है. Now you will understand ahead why did I make a box on substances. So as I said, diffusion is a movement, कोई भी substance, solid, liquid, gas, solid नहीं, like liquid gases can move from a high concentration area to a low concentration area. That is known as diffusion. Now some substances like carbon dioxide, oxygen, they move across the cell membrane by the डिफ्यूजन. अब देखो, आर रेड ब्लड सेल्स, हमारे एरिथ्रोसाइट्स, दे हैव हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर जहाँ से ऑक्सीजन इज टेकन इन, है ना. सो कैसे आता है, वो ऑक्सीजन को खाने बैठते हैं नहीं, ऑब्वियसली इट इज डिफ्यूजन, वो डिफ्यूज हो जाता है. करेक्ट. नाउ वी हैव डिफ्यूजन का ब्रदर, दैट इज ऑस्मोसिस. Osmosis is the movement of water from a region of high concentration to a low concentration through a selectively permeable membrane. Now you understand. When I say diffusion में कोई भी substance can go from high concentration to low concentration, but osmosis में only water can pass through. ठीक है. सो व्हेन आई से अबाउट डिफ्यूजन में देयर इज नो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. लाइक इंक एंड वाटर, वो दोनों भी डिफ्यूजन होते हैं, राइट. बट ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन. दैट मीन्स उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स पास आउट कर सकते हैं. लेट अस से वी हैव अ बीकर यहाँ पे वी हैव 10%, यहाँ पे वी हैव 30%. सो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, लेट्स से दिस इज बी, दिस इज ए. हाई कॉन्सेंट्रेशन है बी पे, सो बी से ए में चला जाएगा. अगर 10 और दे दे, सो 10% हो जाएगा 20, और ये भी हो गया 20. सो एक इक्वल बन जाएगा. ठीक है. सो टू मेक द कॉन्सेंट्रेशन इक्वल देयर आर ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस. अब ऑस्मोसिस सिर्फ एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से हो सकता है, विच डजेंट अलाउ एवरीथिंग बट ओनली सम थिंग्स टू पास आउट एंड पास इन. एज आई सेड, हमारा सेल होता है, उसकी भी जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट्स व्हाई ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस. अब टोनिसिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टॉनिक्स: आइसोटोनिक, hypertonic and hypertonic. अब देखो, first one, isotonic, means that
concentration of water is equal in cell and surroundings. मतलब सराउंडिंग्स में लेटर से हम एक इजी एग्जांपल लेंगे हमेशा. लेटर से एक बीकर में देयर इज वाटर, वाटर के अंदर आई हैव पुट माई सेल. अब वाटर में जितना पानी का कॉन्सेंट्रेशन है और सेल में जितना पानी का कॉन्सेंट्रेशन है, बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू वन अनदर. दोनों इक्वल है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि वो इक्वल है एंड दे हैव नथिंग, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. सो लेट अस से इसमें 100 ml है, बाहर भी 100 ml है, सो दे कैंसिल आउट, सो कुछ नहीं होता. आइसोटोनिक. नेक्स्ट आता है हाइपरटोनिक. अब क्या होता है, योर concentration of water is higher in the surroundings. ठीक है, सराउंडिंग्स में इट इज मोर. एग्जाम्पल, अगेन पानी में हमने एक सेल डाल दिया, अब क्या होगा, बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो पानी किस में जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो वो सेल में चला जाएगा पानी एंड सेल विल स्वेल अप, सो इट विल स्वेल. सो इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन एनी को जो भी सेल होगा वो हमेशा स्वेल कर जाएगा. इट विल ऑलवेज बिकम स्वेल. लाइक इफ यू हैव सीन, देखो रेजन्स लो, ठीक है, किशमिश, टेक रेजन्स, पुट इट इन वाटर, थोड़े टाइम बाद आप देखोगे इट विल बी स्वेलन अप, एकदम स्वेल हो जाएगा. वाई, बिकॉज जो रेजन्स में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वॉज लेस कंपेयर टू द सराउंडिंग, सो दैट इज वाई वो स्वेल कर गया. और इसका ऑपोजिट है हाइपरटोनिक वेर इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज higher in the cell. जब एनवायरमेंट सेल में ज़्यादा पानी है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, बाहर कम है, सो बाहर पानी चला जाएगा, दैट मीन्स इट विल श्रिंक. सो साइज मैटर्स. सी, तो आइसोटोनिक में देयर विल नो चेंज इन साइज एंड शेप, कोई भी शेप चेंज नहीं होगा, इट विल बी रिमेन एज इट इज. हाइपोटोनिक कैसे आ जाएंगे, हाइपो ओ हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, बड़ा सा हाइपो, हिप्पो बन जाएगा, सो स्वेल हो जाएगा वो, ठीक है. और हाइपोटोनिक में वो श्रिंक हो जाएगा, पानी बाहर चला जाता है. ओके, क्लियर. अब प्लांट सेल्स में क्या होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक तीनों होते हैं. आइसोटोनिक में देयर इज नो चेंज, हाइपरटोनिक में द सेल की जो सारी चीज़ें वो एकदम श्रिंक हो जाती है, और हाइपोटोनिक में वो स्वेल कर जाती है. ओके, नाउ there is one process known as plasmolysis. Plasmolysis is the contraction of protoplast of plant cell as a result of loss of water. जब पानी जा रहा है, like look in this image, when पानी like the water is going out, ठीक है, जब पानी बाहर जा रहा है, so प्रोटोप्लास्ट उसको contraction करता है, that is plasmolysis. Shrinkage of plant cell, that is plasmolysis. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है. क्वेश्चन इज what will happen if you put, okay, I'll take a new slide and explain you this question क्योंकि important question है, you should know how to answer it. अब देखो, let us say कि let us take a blank slide first. अब देखो, I'll change the color. देखो, let us say the question comes, you have two beakers. एक में आपने रखा है एक RBC सेल और एक में आपने रखा है एक ओनियन सेल, ठीक है, मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल रखा है. नाउ द थिंग इज, लेट अस से कि आरबीसी जो है, ठीक है, ओ सॉरी वन सेकेंड, अब देखो आरबीसी, विच वन विल, व्हाट विल बी द इफेक्ट, आरबीसी जो जाएगा वो बर्स्ट हो जाएगा, वो फट जाएगा, ठीक है. वेयर एज ओनियन पील, दैट विल नॉट बर्स्ट, इट विल जस्ट स्वेल अप. व्हाई इज दैट सो? आरबीसी के पास सिर्फ और सिर्फ अब हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है. नाउ इन आर ओनियन पील, प्लांट सेल है तो उसके पास होता है सेल वॉल. व्हेन देयर इज अ सेल वॉल, सो वो प्रोटेक्ट करके रहता है, वो एकदम टर्जिड फोर्स बना के रहता है, वो स्वेल होगा बट वो फटेगा नहीं. सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग.
अब चलते हैं हमारे पार्ट 2 पे ऑफ द सेशन, दैट इज सेल ऑर्गेनल। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है चैप्टर का अबाउट सेल ऑर्गेनल्स। अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastid and vacuoles. So let's get started. As I said, organelles क्या होते हैं? Organelles are nothing but structures that has more specific jobs to do. एक सेल में ही जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, परफॉर्म करते हैं फंक्शंस, सिमिलरली एक सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER दैट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल जो ट्यूब्स एंड शीट से बनाता है, कुछ ऐसा। It's made up of tubes and sheets. Endoplasmic reticulum is also of two types. I'll tell you. Continuous with plasma membrane on inside and outside helps in intercellular transport. ठीक है? It helps in biogenesis. It helps in biogenesis. Biogenesis क्या होता है? हमारे सेल वॉल में वी नीड हमारा सेल नॉट सेल वॉल, जो हमारा साइट ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, फॉर दैट प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर प्रोवाइडेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सो बायोकेमिकल एक्टिविटीज टेक प्लेस हियर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के पास राइबोसोम होते हैं, जैसे इफ यू सी हमारा ये है, ठीक है, दिस इज स्मूथ, ये स्मूथ है। अगर उसमें राइबोसोम्स लग जाए, अगर उसका राइबोसोम्स अटैच हो जाए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सो दैट इज नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स इन लिवर से। लिवर में ज़्यादा दवाई खाने से लिवर खराब होता है, सो टू अवॉइड दैट डिटॉक्सिफाई के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स अस। एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में, ऑल्सो प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन synthesis is also done over here. Next comes Golgi apparatus. Golgi apparatus नाम कैसे आया? It is given by a scientist. His name was Camillo Golgi. So Camillo Golgi ने ये नाम दिया Golgi apparatus. It's also known as Golgi body. अब देखो ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ना sac like structure से बना है, जैसे known as cistones. ठीक है, it is made up of what? It's made up of cistones. All right, it is made up of your something known as the cisterns. So membrane बन रहा है sac like structure called cistern. Okay, now characteristics, इसके दो phases होते हैं, इसमें enzymes होते हैं। We have two phases, cis phase and trans phase. cis phase means जहाँ से वो रिसीव करता है कुछ भी चीज़, ठीक है, कोई भी केमिकल्स प्रोटीन्स को रिसीव करने के लिए। एंड ट्रांस फेज इज व्हेन इट इज सप्लाइंग समथिंग, जब वो एंजाइम या कुछ चीज़ को पैकेज करके बाहर भेजता है। ओके, नाउ फंक्शंस। अब देखो नाउ अब देखो व्हाट हैपेंस इज, फर्स्ट वन इट हैज फंक्शन लाइक मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है गोल्जी apparatus में, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। कॉम्प्लेक्स शुगर्स बनाए जाते हैं फ्रॉम सिंपल शुगर, सिंथेसिस होता है। ठीक है, नाउ और लाइसोसोम्स दैट आर नोन एज द सुसाइडल बैग्स। ठीक है, जो सुसाइडल बैग्स होते हैं, फॉर दैट ऑल्सो इट इज नेसेसरी। नाउ द थिंग इज, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। सो व्हाट हैपेंस इज, ये जो होता है ना दैट इज सुसाइडल बैग, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी apparatus. गोल्जी apparatus इसको प्रोड्यूस करता है और मेम्ब्रेन बाउंड है, सो गोल्जी apparatus प्रोड्यूस्ड दिस। नाउ इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अगर देयर इज सम इशू इन द सेल, कोई भी सेल में कुछ भी इशू हुआ, सो व्हाट विल हैपन, द लाइसोसोम विल डाइजेस्ट द एंटायर सेल। प्लांट सेल्स में होता है और एनिमल सेल्स में होता है, प्लांट सेल में थोड़े थोड़े में दिखते हैं। नेक्स्ट कम्स योर माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell because powerhouse of the cell, and it is also semi-autonomous. It is semi-autonomous. What is the meaning? I'll tell you. अब देखो
ऑर्गेनल्स या ये सारी बायोकेमिकल प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है। नाउ ग्रेड 10 में आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन के बारे में। सो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एटीपी आता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया से। एज ए सेड कि इसके क्रिस्टे होते हैं, इसके जो कर्व्स होते हैं ना, दैट इज नॉट क्रिस्टे। गोल्जी के सिस्टर्न्स होते हैं, इसके क्रिस्टे होते हैं। नाउ सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस मतलब स्टूडेंट्स इसके खुद के डीएनए होते हैं। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, ठीक है, दैट्स व्हाट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस। इसका खुद का डीएनए होता है। ओके, नाउ इट हैज डबल मेम्ब्रेन, इट फॉर्म्स द क्रिस्टे। इनर मेम्ब्रेन जो डीपली फोल्डेड है और आउटर मेम्ब्रेन पोरस है, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कैन हैपन। ऑटोनोमस बॉडी है, यू शुड नॉट राइट ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस लिखना चाहिए, बिकॉज इट हैज इट्स डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स। नेक्स्ट कम प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी सेमी ऑटोनोमस होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ओके, अगेन ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, ओनली इन प्लांट सेल्स। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, leucoplast, chromoplast and chloroplast. Again, this is also your semi-autonomous. First one, chloroplast. Chloroplast helps in photosynthesis. इसके पास chlorophyll होता है, okay, it's green in color. वो chlorophyll जो pigment होती है that is present in the chloroplast, ठीक है, photosynthesis में। chromoplast is present the colored, इसमें colors होते हैं ढेर सारे, ठीक है, अलग अलग कलर्स होते हैं जो आपके फ्रूट्स में, देन फ्रूट्स में एंड फ्लावर्स के जो कलर्स आते हैं, दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। एंड ल्यूकोप्लास्ट इज ड्यू टू स्टोरेज, स्टोरेज के लिए वो कलरलेस होता है। एम्लोप्लास्ट स्टोर के लिए, ठीक है। अब देखो, नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाई इज क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स? Chromoplast flowers में सबसे ज़्यादा। If you imagine, if you have a dull, useless looking flower, will you go to it? Obviously no. But if you have colorful, beautiful looking flower, you will obviously go to it. Same for pollination. Reproduction के लिए pollination is necessary. अब खुद तो उड़ के नहीं जा सकते, so they use the pollinators such as bees and all. So for that, the colors are necessary. Next आता है vacuoles. देन वैक्यूल जो होते हैं दैट आर स्टोरेज सैक्स, ठीक है, ये सबसे बहुत बड़े होते हैं। द प्लांट में बहुत बड़ा साइज होता है, वेर एज इन एनिमल सेल या तो नहीं होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। ओके, ये स्टोरेज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ होता है दैट इज द सेल सैप दैट गिव्स यू टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिड एंड रिजिड फोर्स होते हैं। सो इट विल प्रोवाइड टर्जिड रिजिड एंड इट इज टोनोप्लास्ट से वो बना होता है, ठीक है, सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट एंड सेल सैप। ओके, अब देखो फंक्शंस क्या है। सेल सैप स्टोर करता है सॉलिड फूड, टॉक्सिक, इन सबको, और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो दिस इज द टेबल जहाँ पे आपकी सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है अबाउट ऑल द ऑर्गेनल्स, ठीक है, कि व्हाट आर देयर नेम एंड द फंक्शन। सो मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट इट। I'll be seeing in the next session and thank you so much for watching. आज का सेशन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। In the next session हम और पढ़ेंगे, we will learn about more other concepts as well about cell division and we will complete with our chapter. So thank you so much for watching. I'll be seeing you in the next session. Till then, take care and goodbye.